भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 दिसंबर 2020 से ये विशाल विज्ञान महोत्सव प्रतिभागियों, गणमान्य जनों तथा सामान्य जनता के लिए शुरू हो रहा है। IISF की यात्रा की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई। कोविड महामारी की परिस्थिति में इस वर्ष IISF का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा और ये वर्चुअल वातावरण में सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होने जा रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मुख्य समन्वयक तथा निदेशक नोडल संस्थान CSIR NISTADS डॉक्टर रंजना अग्रवाल ने कहा, This year our focus is to highlight science and technology, innovations and interventions made by India to become self-reliant and also project at the international level. India International Science Festival was conceived in 2015 and it has traversed a beautiful journey from Delhi in 2015 to Kolkata 2019. This year the situations are different. Due to COVID, we cannot have an offline conference. Therefore, our Honorable Minister, Science and Technology, Dr. Harshvardhan ji, gave a beautiful idea that we should have this online IISF in a new mode and a new avatar, which is online conference. And he has given us a vision to convert this challenge into opportunity and to connect more and more people in number of connecting people from thousands to lakhs. So keeping this in mind, we have planned IISF 2020. And this year, the responsibility of organizing IISF has been given to CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, and our institute, National Institute of Science, Technology and Development Studies, has been given the responsibility to organize it. So we are very proud and very happy to do it. A brief summary of 6th IISF is, the theme is Science for Self-Reliant India and Global Welfare. The date is December 22 to 25. It's going to be organized on virtual space, and one can register by logging in www.scienceindiafest.org. I'm very pleased to inform that last year there were 28 events under which various programs were organized, but this year the number has increased from 28 to 41. 13 new events have been added. The best part of IISF is that it is not limited to a particular section of people. This whole concept of IISF is to connect masses with the academicians, with the scientists, with the technocrats. Therefore, the participants can be school students, researchers, teachers, national and international scientists, technocrats, industrialists, innovators, entrepreneurs, craftsmen, artisans, artists, social service organizations, farmers, health sector, specially abled people, exhibitors, diplomats, and policymakers, and many others. The vision of IISF 2020 is promotion of Atmanirbhar Bharat and global welfare through science, technology, and innovation. And the objectives are to promote and build scientific temper among the masses and the young children, to catalyze and trigger relationship between science and society, leading to the development of new frontiers of growth, both scientifically and economically, to strengthen nation and to achieve inclusive and sustainable growth in the coming future, to provide a platform for recognizing contribution of science and technology in global development. IISF 2020 has been planned across 9 verticals. These verticals are inclusive development, new frontiers, sustainable development, science for masses, national and international linkages, industry and MSME, science for agriculture and rural development, science and humanities, science for students. Under each vertical, there are more than 3 events, and each event is unique in its nature. For example, in inclusive development, we have Women Scientists and Entrepreneurs Conclave, Conclave on Assistive Technologies and Divyangjan, National Science Organization and institutions meet. अपने संबोधन भाषण में डॉक्टर शेखर चिंतामणि मांडे, महानिदेशक CSIR तथा सचिव DSIR ने IISF 2020 के महत्व को रेखांकित किया।
This year particularly, we have had a huge challenge in organizing the festival, but as all of you are aware, whenever in history of independent India, there have been challenges posed to the scientists and technologists, whether it be during the Green Revolution to make plenty of food available, whether it be during White Revolution to transport and store milk in different places, whether it be during 1970s and 80s when technologies were being denied to India, especially in defense and space sector, or in the current era of globalization, the scientists and technologies have always risen to the occasion and converted those challenges into opportunities. And keeping the same sentiments, this year's Science Festival is being organized. We are converting this particular challenge into an opportunity to showcase that we can organize one of the largest gathering of scientists, students, science lovers in society online, in the online platform. श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय आयोजन सचिव, विज्ञान भारती विभाग। विज्ञान भारती अपने देश में एक कार्यरत विज्ञान आंदोलन है जो स्वदेशी भाव से प्रेरित है। स्वाभाविक है, स्वदेशी यानी आत्मविश्वास, और अपने देश में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास होता है उसके द्वारा समाज के अंदर आत्मविश्वास जगे, जिसके आधार पर आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकती है। इस दिशा में विज्ञान भारती विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है। सामान्यतः इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में 2 कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका विज्ञान भारती की रहती है। इस कार्यक्रम का एक बड़ा आकर्षण का एक कार्यक्रम है मेगा साइंस एक्सपो। अपने देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में, प्रयोगशालाओं में विज्ञान का विकास होता है, वो समाज तक पहुंचना चाहिए। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका अपने देश के समाज के विकास में होती है, वो बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसका प्रयास मेगा साइंस एक्सपो के द्वारा हम करते हैं। अपना अनुभव यह है कि लाखों की संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने आते हैं, अपने देश में जो विज्ञान का विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और एक आत्मविश्वास लेकर वहाँ से अपने अपने घर में लौटते हैं। अपने देश में विज्ञान के क्षेत्र के द्वारा आत्मविश्वास जगाने का एक बहुत बड़ा काम इस मेगा साइंस एक्सपो के द्वारा होता है। और एक बड़ा कार्य विज्ञान भारती के द्वारा होता है, वो यानी इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना। जैसे इस साल इस प्रतिबंधित इस प्रकार के परिस्थिति में भी विज्ञान भारती ने सोचा कि विज्ञान यात्रा का जो कार्यक्रम है वो आभासी वर्चुअल पद्धति से हम करें, और हमने देश के 4 कोनों से यात्रा निकाली और लगभग 228 कार्यक्रम इस यात्राओं के दौरान कर्टन रेजर्स, आउटरीच प्रोग्राम्स ऐसे मिलाकर हम इस साल कर पाए। और अब तक एक बहुत अच्छी संख्या में लोगों तक इन कार्यक्रमों के द्वारा भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को पहुंचाने का कार्य किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, जिसके कारण इस समय इस वर्ष के इस परिस्थिति में भी ये जो वर्चुअल मीडिया के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, ऐसा अनुभव है। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, संक्षेप में अगर मैं अपनी बात को कहूँ तो 2014 के अंत में नवंबर के महीने में मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से ये एक जिम्मेदारी मिली थी। और 6 वर्ष के बाद मैं कम से कम इतना बड़े संतोष और सौभाग्य जैसी भावना के साथ कहता हूँ कि ये शायद मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। और जिस प्रकार का एक्सपोजर मुझे साइंस के साथ, वैज्ञानिकों के साथ 6 साल में प्राप्त करने का मौका मिला, और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रतिभा को कैसे हम देश के, दुनिया के लोगों की जो अनसुलझी समस्याओं के समाधान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को देखने का, समझने का, और उस पोटेंशियल को एक प्रकार से क्रियान्वित होते हुए जनता के, देश के लाभ के लिए परिवर्तित होते हुए मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए हमेशा मेरा ये मत रहा है कि जब तक स्वास्थ्य एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बनता, तब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो लोगों के हित की बातें हैं,
उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना कठिन काम है। लेकिन विज्ञान मंत्रालय में आने के बाद 2014 में कुछ ही समय के बाद जब नज़दीक से लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर वैज्ञानिकों को काम करते हुए देखा और ये देखा कि उन्होंने असाधारण काम किए हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर भारत के अंदर असाधारण उपलब्धियां ना हासिल हुई हों, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि ना तो इन उपलब्धियों के बारे में ना ही इन कामों के बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी है और ना ही हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट या एस्पायरिंग जो साइंटिस्ट हैं, हमारा जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी शायद विज्ञान के प्रति उस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। और उसी सब बातों को देखते देखते समझते समझते अगले कुछ महीनों में ये विचार मन में आया कि विज्ञान को भी एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए। तो उस नाते ये 2015 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की कल्पना की गई थी और इसके माध्यम से विज्ञान के सारे संबंधित लोग देश में विदेश में हर उम्र के, हर अनुभव के, हर लेबॉर्ट्री के, हर आयाम से जुड़े हुए, उनको कैसे जनता के साथ जोड़ना है और कैसे आने वाले हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनमें साइंस के प्रति हमें अभिरुचि पैदा करनी है, इस सोच के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ था। 2020 का जो वर्ष है, कोविड के कारण एक वर्ष इस बात के साक्षी हैं, जो कुछ सबने देखा है, समझा है, सहन किया है। कितने सारे देश के अंदर लोग उन्होंने प्राण गंवाए, कितने सारे कोरोना वॉरियर्स की जो है इसके अंदर हमारे प्राण की रक्षा करते हुए शहादत हुई, ये सब हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर मैं 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 in spite of COVID and everything, not only in India but all across the world, तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। साइंस की जो ताकत है, साइंस का जो पोटेंशियल है, साइंस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भाव पैदा होने की आवश्यकता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने 2020 में होते हुए देखा है और सबने मिलकर विचार विमर्श किया। 2020 में भी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा और शुरुआत भी उसकी एक महत्वपूर्ण दिन में होगी और उसका जो अंत है वो भी एक महत्वपूर्ण दिन में होगा। और इसलिए कल 22 दिसंबर, जो कि देश के इतने बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामानुजन साहब की जयंती है, उस दिन ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और 25 दिसंबर जो हमारे सबके हृदय के साथ इतने जुड़े हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, उस दिन हमारा ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 ये समाप्त होगा। और ये दोनों दिन के बीच में कई किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। साइंस फेस्टिवल है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था और भविष्य में हमारे लिए और ज़्यादा मात्रा में और बड़े पैमाने पर ऐसे फेस्टिवल्स करने की इससे हमें प्रेरणा मिले। IISF 2020 का आयोजन संयुक्त रूप से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष नोडल संस्थान CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान CSIR निस्टैड्स, नई दिल्ली है। इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। वाचन स्वर मनोज माइंडकर, प्रस्तुतकर्ता दिलीप झा।